કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. આજ વાત કરી લઈ કે ઝાબવામાં અને ઘણી ફરજી કોલેજો ચાલી રહી છે. ડિગ્રીના નામને અને શિક્ષાના નામની અને ડિગ્રીઓ કરાવવાના બદલામાં ત્યાં પેલી કે તમે ડિગ્રીઓ તક નહીં મળી રહ્યો. અને એની હાથે હાથે આપણા ઝાબા જિલ્લામાં આદિવાસી ગરીબ છે તેના સોરાને કેવી રીતે ઠગી રહ્યા કે હું આ કોલેજ ખોલી રહ્યા અને આ તમે ભોપાલ અને ઇન્દોર કાં જાઓ તમે કમ ખર્ચામાં ભણી શકો એમ કરીને તીહુની હારું સરકારથી મુઆવજો લઈ લે ત્યાં અને આ કોલેજો ખોલ દે 4-5 રૂમમાં અને ફેરથી દિક્કત આવે પરેશાની આવી રહી. તેવી રીતે રાણાપુરમાં આયુષ્યમાન કોલેજ છે તો એમાં ઝાપવાના કલેક્ટર સાહેબ અને ઝાપવાના જો સ્વાસ્થ્ય વિભાગ છે તીહુની અનુમતિ આલી ત્યારે તીહુની કોલેજને નર્સિંગ કોલેજ ખોલી શકી. તેની હાથે તીહુનો નવા ઘણા નિયમ કાયદા રહે. તેના નિયમ કાયદાની હિસાબથી એક બી કામ નહીં ચાલી રહ્યું. ભાઈ સોરીને ડॉक्टर बनाओ या नर्स बनाओ હોય તો તેની ફીસ પૂરી લીરા અને સરકારથી સબસિડી લઈ લીરા તેના સોરાના નામને. તે સબસિડી તીહું છાત્રવૃત્તિ નહીં મળી રહી કે તમારી 1 લાખની ફીસ હોય તો તમે 50,000 ભરજો. બીજી તમારી હમ સરકારથી જે સબસિડી મતલબ કે છાત્રવૃત્તિ મળવાની તે પૂરી ખાઈ રહ્યા. તો એવી રીતે હમણાં મામલો આવ્યો. ખાતી હું સોરીઓને પેપર દેવાની વાત તે હોશંગાબાદ લઈ ગયા. होशंगाबाद ले जाऊँ कि तुम्हारा वहाँ एडमिशन नहीं थी. जबकि राणापुर में नर्सिंग कॉलेज में जब आयुषी कॉलेज करें नाम से कॉलेज में जबकि तीमा एक नियम कायदो रहता खुदનું એક હોસ્પિટલ બનાવો તાકી સોરાને ડૉક્ટરી શીખી શકે, મેડિકલ કરી શકે કે માં કેવી રીતે દવા લગાડી કેવી રીતે મરીજને હદારી શકે તેઓ ત્યાં શીખવાનું મળે નહીં અને ખાલી રૂપિયા ઠગવાની કળ કરી રહ્યા ઝાબા જિલ્લામાં કે કઈનો ધ્યાન દે નહીં. તે અમારી હાથે કાલ એવીપીના સોરા બી ગયા છે તેવું બી પૂછી કે શું કળ થાય છે તે એવી રીતે બતાડી. અમારી હાથે પવનભાઈ છે. પવનભાઈ કાલ રણાપુરની કોલેજમાં કઈ કળ થાય છે કે શું કળ છે પૂરી જાણકારી બતાડો. બધાને રામ રામ મુકેશભાઈ. જાણકારી એ છે કે રણાપુરમાં એક આયુષ્માન કોલેજ કરીને એક પ્રાઇવેટ કોલેજ ચાલી રહી. તેને કોલેજનો જે પરમિશન લીધેલો તે તેની કોલેજમાં છોરીઓને એમ કહીને એડમિશન આલેલું કે યાર તેમાં સરકારે 30 સીટોને પરમિશન થયું આલેલો. પરંતુ ત્યાં હું રૂપિયાની લાલચમાં આવીને છોરીઓને 20 છોરીઓને એક્સ્ટ્રા એડમિશન આલી દીધું કે તમારી એક્ઝામ વગેરે સબ હું આ કરાવું એમ કરીને. और फिर बाद में साल भर था गयो. साल भर छोरियों भणी लेती और भणवाने बाद फिर तीन छोरियों के हाव तमन जाऊँ पड़े कहाँ होशंगाबाद परीक्षा देवा. तो हमारो ये जिलो से इना जिलो यो आदिवासी नो जिलो से इना जिला में अधिक पिछड़ापन्ना सोरा रहશે और आनी पब्लिक इतनी अमीर नहीं મળે कि ते बाहर जाए भणे ता जाए परीक्षा देवा जाए. तो कहीं न कहीं यो पिछड़ापन फायदो उठावारो लोग शिक्षाना वेपारीकरण नाम पर लूटवाનું जो काम કર્યું. એવી રીતનું આયુષ્માન કોલેજમાં અમારા જે કાર્યકર્તા વિદ્યાર્થી પરિષદના કાલ ગયેલા ત્યાં બી ત્યાં ગયા. ત્યાં ખૂબ બહેસ બી થાય બધું થયું. પરંતુ ત્યાં જબ બહેસ થાય તો તેના જો ડાયરેક્ટર હતો જેને કોલેજનો તેનાને પૂછ્યું કે એની 20 છોરીઓનું એડમિશન છે તો બોલે એનું એડમિશન નહીં મળે. तो फिर जेवी रीते एडमिशन नहीं મળે तो फिर તમે साल भर केवी रीते भणाया तीना. और फिर आज साल भर તમે तीनी फीस तीना एडमिशन ना नाम पर 50,000 रुपया તમે तीहू करते 20 છોરીઓના ली लेदा और बाद में हमने तमु केरा तमन होशंगाबाद जावू पड़े. तो केवी रीते होशंगाबाद जाए केम जाए ज्यां जीनी कॉलेज में ज्यां एडमिशन लेदू तीनी कॉलेज में त्यो आदमी ता तीनी परीक्षा थावी जावे. भाई તમે एडमिशन आल्यू राणापुर में फिर परीक्षा भी राणापुर में कराओ बाहर केम जाए. तो એમનું એમ કે પ્રશાસન એની ધ્યાન નહીં દી રહી. જિલ્લામાં એવી કઈ કોલેજો ચાલી રહ્યો, કઈ ડિગ્રીધારી કોલેજો ચાલી રહ્યો, ટેકનિકલ નોન ટેકનિકલ કોલેજો ચાલી રહ્યો. જેવી રીતનો કે યાર કઈ બી એક માન લીજે એક આદમી હુતારનો કોર્સ કર્યો તો હુતારનો અગર તીન ઘડવાનો અગર તીન વાહલો કેકમ ધરવાનો શું કરવાનું શું નહીં અગર હિયું તીન શીખાડે નહીં તો છોરીઓ જો ડોક્ટરનો જો કોર્સ કરી રહ્યો તો તેના અગર આયુષ્માન કોલેજમાં કે કોલેજનો મેડિકલ કોલેજનો એવું રહે કે યાર મેડિકલ કોલેજમાં કમસે કમ 100 बेड नो एक हॉस्पिटल फेसिलिटी रहवी જોઈએ ताकि ती છોરીઓ ત્યાં જઈને પ્રેક્ટિકલ કરે. હોય કે કમ છડાવવાની ગોળીઓ કે કમ આલવાનો તાવ આવે तीन ગોળીઓ કે કમ આલવાની. अगर मरीज આવી રહ્યું તેના મરીજને અગર ડોક્ટર પૂછે કે યાર તને શું થાય તો फिर તે ડોક્ટર શું કામના. તો અગર હેવી રીતનો અગર તેને પ્રશિક્ષણ નહીં મળે તો फिर તે ખાલી ડિગ્રી કાગદો પર કામની શું કામની. તે હેવી જિલ્લા ભરમાં કઈ એવી કોલેજો ચાલી રહ્યો તો તેના પર હું પ્રશાસન કઈ ને કઈ રૂપિયાની લાલચમાં આવીને હું પરમિશન આલી રહ્યા. અહીં ઝાબવામાં બી એક કોલેજ 2-4 કોલેજો હવી ને નાના કમરામાં ચાલી રહ્યો. તો એના પ્રશાસનને હું કહેવા માંગુ
એના જિલ્લામાં જેટલી બી કોલેજો જે ફરજી તરીકેથી જે પરમિશન લાવીને જે સલાડ રહ્યા નાના નાના કમરામાં એક એક ઘેરોમાં જે કોલેજો સ્કૂલે જે બી સલાડ રહ્યા એની જાંચ કરવું જોઈએ. और पहली बात कि आयुष्मान कॉलेज नो परमिशन आलवाથી પહેલું એનો જિલ્લાનો જો જિલ્લા શિક્ષા અધિકારી છે આપના જિલ્લાનો જો સ્વાસ્થ્ય અધિકારી છે તેને પરમિશન કેવી રીતે આલ દીધી. ભાઈ કોલેજ અગર ખોલી રહ્યા તો કોલેજમાં ભાઈ મેડિકલની સારો સિસ્ટમ રહેવો જોઈએ. તો કઈ ને કઈ એમ દેખાવામાં આવી રહ્યું કે યાર અહીં રૂપિયાની લાલચમાં આવીને આલ્યું. સરકારે जब 30 નો આલ્યો તો ફિર 20 ઓરીનો ભવિષ્ય કેમ બરબાદ કરે. 3,500 રૂપિયા આજ 20 ઓરીનો કેટલા રૂપિયા થાય. તો કઈ ને કઈ सरकार प्रशासन મળીને ये ભ્રષ્ટાચારીઓની હાથે મળીને એનો હોસલો બુલંદ कर रहा है. आज आयुष्मान कॉलेज है, काल उठीने फिर कहीं बीजी भी कॉलेज है जिला में बीजो भी आदमी धंधो खोल दे. तो शिक्षा जो शिक्षा છે એને શિક્ષા ધંધો નહીં બનાવવો જોઈએ. શિક્ષાનો વ્યવસ્થિત શું છે એનો શું જ્ઞાન ગણિત છે. શિક્ષા સમાજમાં એક નઈ ઉન્નતિ और સમાજનો એક નવ નિર્માણ હારું શિક્ષા કરાવવા મોકલી, ના કે હું એને ખાલી કાગદો બનાવીને ડિગ્રી ધારી કરવા હારું મોકલી. તે એની વજહથી કઈ ને કઈ જો સ્ટુડન્ટ અહીંથી ફરી રહ્યું છે તે ભટકે નહીં. તો એવી રીતે આ કોલેજમાં જે ફરજી કોલેજો જેટલી બી છે પ્રશાસન જિલ્લા સીઓથી બી મારો આગ્રહ છે और કલેક્ટર મહોદયથી બી આગ્રહ છે કે સમસ્ત કોલેજ સ્કૂલે જેટલી પ્રાઇવેટ છે એની જાંચ થવી જોઈએ. ઉપર જાંચ કમિટી બહાડીને હું ફેસિલિટી છે. અગર કઈ ને કઈ એવી ગલત કોલેજો છે આયુષ્માન જેવી કોલેજો છે જ્યાં વ્યવસ્થા નહીં મળે, જ્યાં સુવિધા નહીં મળે, જ્યાં મક્કારી ચાલી રહી, જ્યાં લૂંટપાટ ચાલી રહી, તરત કાર્યવાહી કરીને સીલ કરવું જોઈએ એની કોલેજોમાં. તો એક એવી રીતે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મામે કીધું કે હું ભાણજીઓ હારું ઘણી સુવિધા કરી અને આ ઝાબા જિલ્લામાં આદિવાસીની છોરીઓની ભાણજીઓ હારું કેટલું નુકસાન થાય. મામાજી ઘોષણા ખાલી કરી દે. ઘોષણામાં શું થાય કે ગાંવની બેટીને હમ યોજના આલી રહ્યા, લાડલી લક્ષ્મીની યોજના આલી રહ્યા. તે યોજના ધરાતલ પર કાં છે. तो इनो जिम्मेदार कौन, मतलब गांव यहाँ कर्मचारी से या प्रशासन से कौन से या जनप्रतिनिधि से कौन से, जो तो घोषणा करना की ઈના દેખો સીએમ સાહેબે જે ઘોષણા કરી તે કઈ ને કઈ નીચલા સ્તર પર લાગુ. સીએમ ભોપાલ તો આવીને તો ઝાબા જિલ્લામાં લાગુ નહીં કરાવે. આના જે જનપ્રતિનિધિ છે એનું દાયિત્વ પણ કે આના પ્રશાસન કેવી રીતે કામ કર્યું. એના પ્રશાસનના સમય પર જે યોજનાએ નકળી રહે તે નીચે જાહેરી કે નહીં જાહેરી એનો ધ્યાન જિલ્લા કલેક્ટર છે, આના જનપ્રતિનિધિ છે, જો બી જનપ્રતિનિધિ ચાહે કોઈ भी पार्टी ना એની જાંચ કરવાનો એનો એક અધિકાર છે और ये जांच करवो जो. अगर जनप्रतिनिधि हुई गया फिर आनी जनता ने भी जागવું જોવે. कहीं न कहीं जनता ने भी भूल છે કે जनता अगर नहीं जागे ત્યાં તક કઈ થવા વાળું. जनता जागीने रोड पर आवेगी फिर जनप्रतिनिधि भी नींदर उकड़ी जाए कि यार यह गलत થઈ રહ્યું છે. तो हमारा भी दायित्व पड़े, जनताનો भी दायित्व पड़े. हाँ, बीजी बात अगर इन कॉलेज में अगर नियम कायदो नहीं बदले तो हूँ एबीपी हूँ कल करवानी से धमकी भी दी रहा था हमने. જેવી રીતનું કાલ બી તેના ડાયરેક્ટરનો ફોન આવેલો અમારા કાર્યકર્તાની મેં પાસમાં તો તેવું કહી દઉં કે હું કઈ ને કઈ તમારા સંગઠનના વિચાર પરિવારના આદમી છે કહી દઉં. તે તેના ડાયરેક્ટરને હું કહેવા માંગુ કે અમારા સંગઠનમાં ભલે અમારા વિચારના અગર આદમી ઓહે પર અગર ગલત કામ कर રહ્યો तो फिर त्यो हमारा आदमी नहीं थाई सके. हमारा संगठन में हम समाज सेवा करवा वाला संगठन हमारो. तो कहीं न कहीं हमारा संगठन गलत कदम नहीं उठावे और अगर यो कहीं न कहीं आदमी गलत कदम उठावे रहे तो हमारा संगठन नहीं थाई सके. यो हमारा संगठन नाम लीन हमारा संगठन ने सहारे भ्रष्टाचार करवा चाही रहो. तेना कहवा मांगो कि हम कहीं ना भी समर्थन हो या कहीं भी हो, अगर गलत ते गलत से विद्यार्थी परिषद इनो विरोध कर है एबीवीपी. और अगर प्रशासन ने इना 2 થી 3 दिन में अगर जांच नहीं लगाड़ी और आयुष्मान कॉलेज ने बंद नहीं करियो और इन 20 छोरियों ने एग्जाम परीक्षा आ नहीं देवाड़ी और इहुना भविष्य अगर बर्बाद थायो तो विद्यार्थी परिषद पहला नो हमें खाली रोड जाम करेलो, नानी मोटी समस्याओं पर हाव ना हम आखो जिलो बंद कराऊं और जरूरत पड़ी 47 बंद कराऊं और आती दिल्ली तक आवाज जाओ. अगर लड़वू पड़े तो हम सड़क पर उतने लड़वाना से इना सोरान जब तक इन 20 छोरियों न्याय नहीं મળે ત્યાં तक विद्यार्थी परिषदना कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद ने झाबवानी इकाई जेतरा भी कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद सतत लड़ती रहे. चाहे कहीं भी थाई जाए, चाहे गर्मी या ठंड कहाँ पे भी बहू पड़े और लाठिया भी खाओ 144 में मार भी पड़े एम के मार भी खाओ पड़े खाई लो. बाकी सोरानो भविष्य हम बर्बाद नहीं थवा दी. एवी रीतनु हम अगाड़ी रणनीति हमारी बनती जाए. हजू હું પ્રશાસનને 2 દિનની મોહલત આલી રહ્યા, એમાં એની કાર્યવાહી નહીં કરી फिर अगलो कदम हमारो कड़ो कदम रहे. और तिमा जेतरी भी अगर संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ कहीं भी था विद्यार्थी परिषद आंदोलन करो. आप किस नॉलेज में आया कि आप कॉलेज में पहुंचे हैं, किस तरह का मामला है?
2 से 4 छात्राएं जो हमारे क्षेत्र से वहाँ पे स्टडी करते हैं, उन्होंने फ़ोन करके अवगत कराया कि हमको कॉलेज में ये बोला जा रहा है। तो फिर जब मैंने सभी हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करा और वहाँ जाके हमने देखा तो वो कॉलेज लगभग 3-4-5 साल हो गए उसको वहाँ संचालित होते होते। ऐसे कई कॉलेज हैं हमारे ज़िले में जो एक ही डायरेक्टर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और फीस कुछ ज़्यादा लूटी जा रही है, ये भी समस्या है उनके सामने। दूसरी बात ये है कि जब एडमिशन लिया जाता है उस समय बहला फुसला के एडमिशन दिया जाता है उनको कि आपको ये करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा। अब इनके यहाँ टोटल जो जिस कॉलेज में हमने जाके पूरा देखा तो उनके यहाँ 30 सीटें हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रखी है, उसकी जगह उन्होंने 50 एडमिशन लिए और ये बोल के लिए गए कि अभी आप 25,000 रुपये भर दो, इसके बाद जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब भरना। अब उनके पास स्कॉलरशिप थोड़ी डिले हो रही है, उसकी जगह उनके ऊपर फोर्स करके भरवाया जा रहा है फॉर्म और ये बोला जा रहा है कि अगर नहीं भरोगे तो निरस्त कर दिए जाओगे। और आपको जो एक्स्ट्रा छात्र हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको होशंगाबाद जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, जबकि स्टार्टिंग में जब एडमिशन लिया गया तब नहीं कहा गया कि आपको होशंगाबाद जाना है और वहाँ भी जाना है तो अपने खर्चे से जाना है। जबकि अगर इतना ही अच्छा उनके घर की कंडीशन होती तो वो वहाँ जाके अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ कंडीशन के कारण माँ बाप कुछ कर्जा लेके देते हैं, पैसा कहीं से निकाल के देते हैं, ब्याज वाले निकाल के देते हैं और ये लोग खिलवाड़ करें। हम कॉलेज में जाके हमने भ्रमण किया तो पाया कि न तो वहाँ लाइब्रेरी है, न कोई प्ले ग्राउंड है, नीचे पार्किंग तक की सुविधा नहीं है और अच्छे से किसी प्रकार का प्रैक्टिकल करवाया जाए। जबकि हॉस्पिटल में ये होता है कि स्वयं का हॉस्पिटल ना हो तो गवर्नमेंट में ले जाया जाना चाहिए। और 3 साल बाद एक और रूल्स होता है कि मेंटल कॉलेज का प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाता है एक महीने के लिए, वो भी आज तक छात्रों को नहीं ले जाया गया और हमेशा बहला फुसला कर ही एडमिशन लिए जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर वहीं पर जब हम थे वहाँ पे भी कुछ मीडिया साथी हमारे आए थे, उनको भी बोल रहे कि मीडिया साथियों को बोला जा रहा है कि आप किसकी परमिशन से अंदर आए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, स्वतंत्र आवाज़ उठाने में हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद वहाँ के जो टीचर स्टाफ था वहाँ का, उनको भी बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। बच्चों को क्या गाइडलाइन करेंगे। फिर जब बच्चे बाइट दे रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि तुम्हें इंटरनल और प्रैक्टिकल में पास होकर देख लो। बच्चों को खुलेआम धमकी दी जा रही है वहाँ पे, हमको धमकियाँ दी जा रही है कि आप राजनीति करने के लिए आ गए। बात यह है दरअसल कि हम समाज का मुद्दा उठाते हैं, बच्चों के हित में काम करने के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं और हम गए थे वहाँ पे। ऐसा ही एक टीचर थी वहाँ पे, उसका ये कहना था कि आप कौन होते हो, ये वो, मतलब अनर्गल शब्दों का उपयोग किया जा रहा था। प्रिंसिपल से बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। जो डायरेक्टर उस कॉलेज का है उसने मुझसे बात की मोबाइल पे, तो उसका ये कहना है कि आप और हम एक ही संगठन में काम करते हैं, बैठ के इस मामले को सुलझा लेंगे। बात मामला सुलझाने की नहीं है, बात ये है कि जो कॉलेज में समस्याएं हैं उसको सुधारिए और बच्चों को जो अवैध तरीके से कॉलेज संचालित कर रखा है, एक तो उसकी जांच होना चाहिए। मेरी जिला प्रशासन से और जो जिला चिकित्सा अधिकारी है उन दोनों से मेरी विनम्र निवेदन है कि छात्राओं का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है उनको उनकी ओर ध्यान दिया जाए। और इस कॉलेज, और उसने हमको डायरेक्टर साहब ने ये भी कही कि मेरी केंद्रीय मंत्री से मेरी पहचान है, केंद्रीय मंत्री के ऑफिस से बोल रहा हूँ। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाया जाता है। हमारी मांग ये है कि जांच बेबाकायदा होना चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो एबीवीपी का जो पूरा काफिला है 2 से 4 दिन के अंदर डिसीजन लेके अपना काम वहाँ पे करेगा और उसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, क्योंकि छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम होने देना नहीं चाहते हैं और ना ही होगा उनके साथ। अगर नहीं होगा तो हम रिटर्न जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीपेन जमरा है, एबीवीपी सदस्य। क्या समस्या को लेकर आप कॉलेज में पहुंचे थे? हमें कुछ छात्रों ने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि हमारा एडमिशन सत्र 21 और 22 में नर्सिंग कॉलेज आयुष्मान जो कॉलेज है जो राणापुर के अंदर है उसमें एडमिशन हमको दिया गया और हमने हमारी फीस जमा करी। और फीस जमा करने के बाद जब कॉलेज प्रशासन अभी साल भर होने के बाद हमको बोल रहा है कि आपको एग्ज़ाम देने होशंगाबाद जाना है। फिर हम लोग स्वयं गए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर हमने बात करी प्राचार्य सर ने, तो उनका कहना है कि ये स्वयं के खर्चे से वहाँ जाए। फिर उन्होंने कॉल पे बात करें उनके डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा, जब हम क्लास में ही थे तो लड़कियों के सामने हमने स्पीकर पे सभी को सुनाया कि उन्होंने कहा कि इनका एडमिशन नहीं है, ये अपने घर बैठे। तो हमने यही उनसे कहा कि आपने जब इनसे एडमिशन नहीं है तो आपने 40,000 रुपये प्रत्येक छात्राओं से फीस किस आधार पे ली। आपने फीस लेने के बाद भी अपने साल भर इनको पढ़ाया और अभी अंतिम चरण में इनकी एग्जाम है और आपने बोला इनका एडमिशन नहीं है। तो कुल मिला के आदिवासी अंचल के जो गरीब लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं कम पैसा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो इंदौर भोपाल ना जाते हुए उन्होंने राणापुर अपना लोकेशन चॉइस किया और वहाँ पढ़ने के लिए उन्होंने अपना एडमिशन लिया। और अब उनको बोलते हैं आप होशंगाबाद जाके अपनी पढ़ाई करिए। तो कुल मिला के कॉलेज प्रशासन वो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहा है। वो एजेंट का जो काम है, वो एजेंट का काम
आयुष्मान कॉलेज के जितने भी स्टाफ वो सब मिल के लड़कियों का एडमिशन करवा लेते, पर फिर बाद में उनको ऐसे ही छोड़ देते। तो हमारा मांग थी कि इन बच्चियों को एडमिशन आपने दिया है तो आप बाकायदा उनकी एग्ज़ाम नर्सिंग आपकी कॉलेज में ही करवाए और साथ ही इनका एडमिशन इसी कॉलेज में होना चाहिए। इसको लेकर हमने विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं से भी बात करी और छात्राओं ने हमें ये जानकारी बताई और छात्रों ने भी अपनी जो समस्या थी वो मीडिया के सामने रखी थी। तो हमारी यही मांग है कि कुल मिला के जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी बिल्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही वहाँ सुविधाएं हैं और प्रशासन का एक आदेश होता है कि 3 साल के अंदर नर्सिंग कॉलेज जो भी खुलता है उसके बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आज 5 साल हो गए है फिर भी आयुष्मान कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी है और वो भगवान भरोसे आयुष्मान कॉलेज चल रहा है। तो हमारा यहाँ का प्रशासन है, सीओ साहब है, इनसे निवेदन है कि आप रनापुर जाकर आयुष्मान कॉलेज की जांच करें, उसको निलंबित करें, क्योंकि वहाँ पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है और वहाँ सिर्फ एजेंट पे काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ की छात्राओं को, आदिवासी समाज की भोली छात्राओं को अपने शगुल में फंसाते हैं और एडमिशन के नाम पे उनसे पैसे वसूल लेते हैं, फिर बाद में बोलते थे आपका एडमिशन नहीं है। तो किस प्रकार से आदिवासी समाज को लूटा जा रहा है उसकी जांच करें। इस बात को लेकर विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया और हमारी मांग रखी हमने। क्या नाम है आपका? प्रताप कटारा, एबीपी जिला संयोजक झाबुआ। और इनमें कई भी था तेनी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन नहीं रहे, फिर हम 144 नहीं भाड़ी और ना 320 केवी भी धारा लगा दे, हम कोई पड़ेली नहीं मौत ही। तो हेवी इतनी बात से है एबीपी ने जो सोरो से एबीपी संगठन बनाएलू से कि भारत भर में मोटू एक संगठन है सो विद्यार्थी परिषद करके कॉलेज में भणावा ते यहाँ सोरा में जो तकलीफ पड़े या कॉलेज में तकलीफ पड़े तीन न्याय लड़ावा हारू अगाड़ी आवे। इना काले इनी संगठन थी काल गेला आयुष्मान कॉलेज कर राणापुर में इन कॉलेज में घणो बधो गभोड़ो चाल रह्यो तेनी हारू न्याय करवा सरकार ने कीरा, प्रशासन ने कीरा कि भाई देख अमारू 2-3 दिन में काम नहीं थयु, हम मोटो सक्को जाम करूँ, मोटो धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ અને भले 144 ની ધારા લગાડી મેલી છાપામાં તો કઈ રીતે બી તૈયાર છે। એવી રીતની વાત છે, હા પ્રશાસન કે રહ્યું નહીં માંગ્યો પૂર્યો કરે કે નહીં કરે આવાવાળા 2-3 દિનમાં માલુમ પડે। તો એવી રીતની હું મુકેશ માં તમારે તો ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહી। કાકા બાબા રામ राम। नेतागिरी बात नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे, किसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये आपका ऐसे बात करने का तरीका है, आपका तरीका इनसे बात करने का तरीका। हाँ दिख रहा है हमको, देखो इधर वीडियो पे, इधर ये दिख रहा है।